A very beautiful good morning to class 12 biology students. Now I am going to discuss the next chapter. It means the chapter 4th of unit 1, last chapter, that is reproductive health. So I am going to discuss the important topics of this chapter. Then the first topic is contraceptive method. As we know that our population is increasing very fastly, and we are not having the proper resources to complete the needs of this population. So there is a need to adopt some method by which the unwanted pregnancies can be prevented. So these method by which we can prevent the unwanted pregnancies, these are known as contraceptive methods. So firstly I am going to discuss what is the main features which should be present in the contraceptive in a contraceptive, which feature should be present. First is that it should be user friendly. यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. इट हैज़ लीस्ट और नो साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो. एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल ड्राइव. So these are some features which must be present in a contraceptive method by which a person can use it friendly, has no or least side effect or no interference in the sexual method or in the sexual drive. So I am going to discuss the contraceptive method, which are natural contraceptive methods. नेचुरल मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन, एनी सर्जरी, कोई हम कुछ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं कर रहे, नेचुरली प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नेचुरल मेथड्स. एंड द फर्स्ट नेचुरल मेथड इज पीरियोडिक abstinence. Listen one thing, as you all know that I have already told you in the menstrual cycle that there is a period that 10 to 17 days. In between this period, in between this period of menstrual cycle, there is a 14th day on which the ovulation occur. 14th day पर क्या होता है, ovulation होता है. It means the duration of 10 to 17 is a very highly risky period because the chances of contraception are too much high if the coitus is done between this period. अगर coitus इस duration में किया जाए, क्योंकि उस समय ओवा बन गया है, और अगर इस समय coitus किया जाए तो ज़्यादा chances होते हैं प्रेगनेंसी के zygote formation के. इसलिए to avoid this period, आप इस period को क्या करना है, एब्सेंट करना है. इस पीरियड में कोइटस को अवॉइड करना है ताकि जो प्रेगनेंसी है वो बच पाए, उससे फ्यूजन ना हो पाए स्पर्म और ओवा का. सो दिस इज फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिटेंस. एंड नेक्स्ट मेथड इज कोइटस इंटरप्टस. This is a very simple method. As we know that when the sperm are transported by the penis into the female genital tract, then when the time of ejaculation comes, it means when the time comes when the semen is transferred into the genital tract. So if before the ejaculation, if the penis is removed from the vagina, then it means if the semen is not transported, then there is no fusion between the sperm and ova. अगर semen ही ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ejaculate करने से पहले ही मेल अगर अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से रिमूव कर लेता है ड्यूरिंग क्वाइटस, देन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कैन बी इंटरप्टेड. वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगी, सीमेन नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, फ्यूजन नहीं होगा, प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी. नाउ द थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमेनीरिया. मे बी पॉसिबल स्पेलिंग गलत हो, यू विल चेक. ओके, लैक्टेशनल एनेमेरिया. ओके, दिस इज द मेथड व्हेन द पार्ट्यूरेशन अकर्स. जब पार्ट्यूरेशन हो जाता है उसके बाद में द लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट्स एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन मैनी केसेस व्हेन द लैक्टेशन पीरियड अकर्स देन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट मीन्स देयर इज नो ओवा फॉर्मेशन. उस पीरियड में कोई ओवा फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही. और ये जो पीरियड है वो 6 मंथ्स तक का होता है मैक्सिमम. कुछ लोगों में 1 साल भी होता है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट. ओके, तो इस ड्यूरेशन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, ओवा फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और अगर इस ड्यूरेशन में लैक्टेशन ड्यूरेशन में अगर कोइटस किया जाए तो वहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं. सो दीज आर द 3 मेथड. पहले में इस ड्यूरेशन में आपको कोइटस अवॉइड करना है. इसमें जब आप कोइटस कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में इजाकुलेशन होने से पहले रिमूव कर लेना है जेनाइटल ऑर्गन को. और लैक्टेशन पीरियड में अगर हम कोइटस करते हैं तो वहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं. अब नाउ ऑल दीज आर नेचुरल मेथड्स. सो देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि कुछ आप आर्टिफिशियल इसमें यूज़ ही नहीं कर रहे हो. बट द चांसेस ऑफ फेलियर आर टू मच हाई.
जो चांसेस हैं फेलियर के वो बहुत हाई होते हैं। हाई इसलिए हो सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल ओवर ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर जाए, हो भी सकता है इस पीरियड में कोइटस हो जाए। कोइटस इंटरप्टस में इट मे बी पॉसिबल इजाकुलेशन में सीमेन की अमाउंट थोड़ी सी पहुंच जाए बॉडी में, या ये भी हो सकता है कि इट मे बी पॉसिबल आप 6 मंथ्स मान के चल रहे हो कि 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ जाएगी और इस समय हम कोइटस कर सकते हैं, और हो सकता है 4th मंथ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो ये सारे रिस्की मेथड्स हैं, लेकिन कोई भी इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड्स की, जिनमें सबसे पहला मेथड है आपका बेरियर मेथड। सिंपल है, इनमें कुछ आपको ज़्यादा बताना नहीं है मुझे। बेरियर मीन्स दिस इज द मेथड विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, जो स्पर्म और ओवा को मिलने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द condoms आर यूज्ड विच आर डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट, जो लेटेक्स शीट से बनाए जाते हैं। इन द मेल्स दीज आर यूज टू कवर द पेनिस, और इन द फीमेल दीज आर यूज टू कवर द वजाइना. So when the coitus occur, then if it is covered by the latex sheath, then there is no transfer of semen into the genital tract of female. genital tract के female में semen transfer ही नहीं होगा, जब transfer नहीं होगा तो कोई भी fusion नहीं होगा. And the most important thing about it, इसकी जो सबसे important थी ना, it prevent the STDs, ये हमें किससे बचाता है, इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन ऑफ STDs. अगर आप कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में है और अगर वो बेरियर मेथड यूज़ कर रहा है तो चांसेस जो हैं वो बिल्कुल जीरो होंगे, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है, स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ HIV एड्स की, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है, क्योंकि बॉडी का कोई फ्लूइड इन्फेक्टेड पर्सन का अनइन्फेक्टेड में जाएगा तो वो वायरस उसकी बॉडी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड जो है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सीमेन, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफरिंग, because the genital organ is covered by the condom, so these are not transmitted, so the chances of the STDs are too much. It means too much के less क्या कहेंगे, no chances of STDs, कोई चांस नहीं होते. And these condoms are the disposable methods, it means use and throw methods. इसके अलावा डायफ्राम होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं बहुत सारे, ये फिर से यूज़ करे जा सकते हैं, ये ऐसे मेथड्स होते हैं, लेकिन इफेक्टिव सबसे ज़्यादा यही होता है, कंडम्स यूज़. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे कंट्री में, IUCDs या IUDs कह सकते हो, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये भी सिंपली मेनली क्या है, मोटिव क्या है कि स्पर्म और ओवा की मीटिंग को रोकना. ये जो IUCDs हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नॉन मीडिएटेड IUDs, इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप. दूसरा है कॉपर IUDs, इसका एग्जाम्पल है कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, और एक है हार्मोनल IUDs. प्रोजेस्टेरोन है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. कॉमनली मुझे यहाँ फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करने हैं क्या हैं. ठीक है, जो ये मैं स्पेशली बात करूँ जो हमारी कंट्री में यूज़ होता है वो कॉपर टी. एक टी शेप की स्ट्रक्चर होती है जिस पर कॉपर की कवरिंग होती है, उसके फीमेल में उसको इंसर्ट कराया जाता है, वेजाइना के थ्रू से इंसर्ट कराया जाता है यूट्रस में. अब इसका काम क्या क्या होता है, अगर हम डिस्कस करें इसके कामों को तो इनके काम बहुत स्पेशल होते हैं. सबसे पहले अगर मैं कॉपर वाले की बात करूँ, कॉपर IUDs की बात करूँ, तो ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म की. इट मीन्स क्योंकि इम्प्लांटेड कहाँ है ये कॉपर टी, यूट्रस के अंदर है, अगर बाई चांस स्पर्म पहुँच भी जाता है तो उसको क्या कर देंगे, कॉपर क्या है, एक लीथल है, एक तरह से बहुत हार्मफुल है, तो कॉपर क्या कर देगा, उसको मार देगा, फेगोसाइटोसिस कर देगा स्पर्म की. और एक और चीज़ करता है कॉपर के, कॉपर क्या करेगा, स्पर्म अगर एंटर हो भी गया तो उसकी मोटिलिटी रिड्यूस कर देगा कि स्पर्म फ्यूजन एरिया तक, इट मीन्स एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक जा ही ना पाए. उसके अलावा ये भी है कि अगर मोटिलिटी भी नहीं कर पाया तो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम कर देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. मतलब ईच एंड एवरी लेवल पर ये बचा सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से. फेगोसाइटोसिस कर देंगे, मोटिलिटी रिड्यूस कर देंगे, या उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस कर देते हैं जिससे फ्यूजन नहीं हो पाता. और अगर हम बात करें हार्मोनल IUDs की, जो हमारी 3rd कैटेगरी है, तो ये क्या करती हैं, अगर फ्यूज़न हो भी गया तो यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए. मतलब जाइगोट बन भी गया तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा. और एक और दूसरा काम करती हैं, ये सर्विक्स को होस्टाइल बना देती हैं कि अगर स्पर्म एंटर कर भी गए तो वहीं सर्विक्स में रुक जाएंगे, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे. सो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेथड है वो है आपकी IUCDs. कोई भी फीमेल अपने बच्चों में गैप रखना चाहती है तो वो ज़्यादातर अपने यूट्रस में कॉपर टी इंट्रोड्यूस करा लेती है, किसी तरह की IUD इंट्रोड्यूस करा लेती है, और जब उसको प्रेगनेंसी मतलब जब उसको नेक्स्ट बेबी कंसीव करना होता है तो वो निकलवा दी जाती है IUD, और वो कंसीव कर सकती है. अब हमारा जो अगला मेथड है वो है आपका पिल्स.
मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ आपके साथ डिस्कस करना है। पिल्स क्या है, कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का, जिसको ओरली दिया जाता है। और क्योंकि ओरली दिया जा रहा है तो क्या होंगी, टैबलेट्स होंगी, जिनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। आप सबको मालूम है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड है। उन 28 डेज में 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के छोड़कर कंटिन्यूसली 21 डेज तक ये पिल्स ली जाती हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं। मतलब ओवा फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर अगर हो भी जाए फ्यूज़न तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज़ को अगर आप छोड़ दें तो 21 डेज़ आपको कंटिन्यूस लेनी होती हैं मेडिसिन। सीधी बात है, ये जो मेडिसिन है 21 डेज़ तक ली जाती हैं, तो ये उस ड्यूरेशन तक रोक कर रखती हैं, लेकिन इनके बहुत कम लीस्ट साइड इफेक्ट्स या कुछ ही साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो लेकिन अब थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया इन पिल्स में। इन पिल्स में क्या कर दिया गया, अगर मैं लगाऊं इस ड्यूरेशन को 7 4 या 20 डेज में, मतलब कितने वीक्स हो गए, 7 वीक, तो एक नई तरह की मेडिसिन आना शुरू हो गई जिनको वंस इन अ वीक लिया जाता है। वीक में केवल एक बार लिया जाता है। मतलब आप ये समझो कि 7 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के छोड़ दो तो 3 हफ्ते बचे, 3 हफ्ते में आपको 3 मेडिसिन लेनी होती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। अब आता है हमारा अगला मेथड, वो है आपका इम्प्लांट। सिंपल मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। इम्प्लांट्स का मतलब है कि इंजेक्शंस की फॉर्म में या फिर इम्प्लांट्स की फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में मिक्सचर के साथ या फिर अलग प्रोजेस्टेरोन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेम फंक्शन है जो पिल्स का होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई द इम्प्लांट्स आर बेटर देन पिल्स। इम्प्लांट्स बेटर क्यों होते हैं पिल्स से, तो उसका आंसर मैं देने वाली हूँ अभी आपको। सेम कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसको बस ओरली लिया जा रहा है, इसको इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में या इम्प्लांट्स की फॉर्म में लिया जा रहा है, स्किन में डाला जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, 72 आवर्स ड्यूरेशन होती है। कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में, तो अगर उस ड्यूरेशन में भी आप इम्प्लांट्स इंट्रोड्यूस करा देते हो तो आपका फ्यूजन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। 72 घंटे का ड्यूरेशन होता है। तो ज़्यादातर इम्प्लांट्स कब यूज़ करे जाते हैं, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या कोई रेप केस है, तो उस ड्यूरेशन में इम्प्लांट्स दे दिए जाते हैं बॉडी में, जिससे कि फ्यूजन को, इम्प्लांटेशन को रोका जा सकता है। दिस इज द मेथड। नाउ नेक्स्ट आता है जो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, सर्जिकल मेथड्स। 2 तरीके के होते हैं सर्जिकल मेथड्स, पहला वैसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी। क्या करते हैं, मेल्स में क्या करते हैं, जो आपकी वाज डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है, कट करके टाई अप कर देते हैं। इट मीन्स देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टेस्टिस एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। जब टेस्टिस से स्पर्म ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि उस वाज डिफरेंस को काट करके क्या कर दिया, टाई अप कर दिया। इट मीन्स सर्जरी कर दी, उसका खत्म कर दिया बिल्कुल। ये वो मेथड है जिनको हम कहते हैं टर्मिनेशन मेथड्स। टर्मिनेशन मेथड मतलब जब कोई कपल इससे अब कोई बेबी नहीं चाहता है, आगे कोई बेबी कंसीव नहीं करना चाहता है, टर्मिनेशन कराना चाहता है प्रेगनेंसी का, इसीलिए वो ये मेथड, सर्जरी मेथड कराए जाते हैं। तो मेल्स में उसकी जो वास डिफरेंस है उसको कट करके टाइप कर दिया जाता है, और फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब्यूल है, जो ओविडक्ट है, उसको कट करके टाइप कर दिया जाता है। तो जो ओवा स्पर्म है वो बनेंगे भी तो क्या होगा, जाएंगे नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होंगे डक्ट्स में नहीं ट्रांसफर होंगे तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ सीधा सीधा के ऑर्गन्स का कनेक्शन बिल्कुल तोड़ दिया, जिससे कि जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर ही ना पाए। बट मैंने जैसे भी बोला, दिस इज अ टर्मिनेशन मेथड। टर्मिनेशन मतलब लास्ट मेथड है, और इसके साथ साथ इरिवर्सिबल मेथड है। इरिवर्सिबल मेथड का मतलब कि एक बार अगर सर्जरी करा दी तो दोबारा से आप मतलब फिर से अगर चाहते हो कि कोई बेबी हो तो नहीं पॉसिबल हो पाता है वो, क्योंकि वो सर्जरी एक बार हो गई और मतलब एक तरह से आप समझो स्टेरिलाइजेशन वाली प्रोसेस आ गई कि आप स्टेराइल हो गए। नाउ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, अब आप बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेचुरल आ सकते हैं 3 मार्क्स में, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल मेथड भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है पेपर में। तो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इट मीन्स एसटीडीज, जो इन्फेक्शन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं, उनको डिस्कस करने वाली मैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।